103 مشہور زبانہ آیت ہے. آپ میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے متعدد بار یہ حوالہ سنا ہوگا, پڑھا بھی ہوگا. میں ایمان رکھتا ہوں مسیحی بائبل پڑھتے ہیں جب کبھی موقع ملے, وقت ملے. زیادہ تر ٹائم ہی نہیں ہوتا, اگر ملے تو پھر کسر کاٹ لیں گے کرسچن. اس کی پہلی آیت سے ہی دیکھیں گے, لکھا ہے مقدس داؤد کہتا ہے, اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ, اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہہ. اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. وہ تیری جان کو وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا, وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا, وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے. وہ تجھے عمر بھر اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے. تو عقاب کی مانند اثر نوجوان ہوتا ہے. کتاب مقدس کا پڑھا سنا سمجھا قبول کیا جنا, ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث بنے. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کی. یسوع مسیح کا ہی فضل ایسی کٹھے بیٹھے ہیں. صدقے جائیے, وہ کہتا ہے جتھے 2 تے 3 موجود ہونا تھے میں موجود ہوں. پوری قدرت نہ, پورے معجزے آنا. خداوند یسوع آپ کی شفا لے کر یہاں آیا ہوا ہے, آپ کے معجزے لے کر یہاں آیا ہوا ہے. اس کی جبلت کے اندر پایا جاتا ہے کہ جہاں وہ ایک مرتبہ آ جائے معجزے وقوع پذیر ہوتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک عبادت کے اندر موجود تھے, کلام سنا رہے تھے. وہاں پر ایک شخص کو لایا گیا جس کا بازو یہاں سے کٹا ہوا تھا, ہاتھ سے ٹنڈا تھا, اس کا بازو نہیں تھا. لکھا ہے یہودیوں نے اسپیشل اس کو لائے تاکہ آج آزمائے یسوع واقعی معجزے کردا یا نہیں کردا. لکھا جب وہ یسوع کے سامنے آیا تو یسوع نے کہا اپنا ٹنڈا والا ہاتھ اوپر کر. جیسے ہی اس نے ٹنڈا بازو اوپر کیا اس کا ہاتھ نیا نکلا ہے. یہ یسوع کی ذات کے اندر پایا جاتا ہے. وہ چلے تاوی معجزے, وہ بیٹھے تاوی معجزے. صدقے جاؤ میں اس کی ذات کیا بیان کروں, وہ تھوکے تو معجزے شروع ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا. خدا کا بندہ مقدس داؤد میرے خیال میں خود کوئی ایڈوائس دے رہا ہے, خود کوئی مشورہ دے رہا ہے. جنہیں ڈاکٹر کو مشورہ فیس پرچی نہیں ہوتی, وکیلوں کو جائیے, وکیلوں کے پاس ان کے مشورے کی بھی فیس ہوتی ہے, ڈاکٹروں کے پاس جائیں پرچی فیس ہوتی ہے. تو یہ خود کوئی مشورہ دے رہا ہے. کہتا ہے اے میری جان کیا کر, خداوند کو مبارک کہہ. خداوند کو کیا کہہ؟ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے سن 2022 کے اندر اس طرح سے مبارک کہا ہو؟ آپ میں سے یہاں پر کتنے ہیں جنہوں نے 4 5 7 10 رشتہ دار بلائے ہوں, پورا ملا بلایا ہے اور برملا تماشا بنے ہوں اور لوگوں کو بلا رہے ہوں آئے. سن 2022 میری زندگی میں بڑا بابرکت رہا ہے. میں کئی مرتبہ موت کے قریب گیا. اے میری جان خدا کو مبارک ہے جس نے موت میں سے نکال کر زندگی بخش دی. کتنے ہیں یہاں پر؟ بہت کم. رولا ہے, شکر گزاری کرنا بہت مشکل ہے. اسی اینے کو سیانے ہو گئے ہیں کرسچن جدا صاحب ہی کوئی نہیں. اینے کو سیانے ہو گئے ہیں, صاحب ہی ہے ہی کوئی نہیں. ہم بھول چکے ہیں. بائبل میں مقدس داؤد کہتا ہے اے خداوند اگر تو آسمان سے اپنی مٹھی نہ کھولے کوئی بشر سانس نہیں لے سکتا. جرات نہیں انسان سانس لے سکے اگر خدا مٹھی نہ کھولے. فکر ہے کسے ہے پرواہ کسے کرسچن بڑی ذمہ داری نہ توار ہے, پینٹ کوٹ پا کے فریش ہو کے چرچ جان دی ہے فکر کے ہم اس کی دی ہوئی برکتوں کو انجوائے کرتے ہیں, ہم مستفید ہوتے ہیں اس کی برکتوں سے, ہم خوشیاں مناتے ہیں اس کی برکتوں سے. شکر گزاری کوئی نہیں. کوئی خاص وجہ ہے. کہتا ہے خداوند دے نام نو جلال دے میری جان, جو کچھ بھی ہے وہ دے فضل ہے.
अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और ताड़े जे साह चलने ने मुकद्दस दाऊद कहता ऐ खुदावंद अगर आसमान से तो अपनी मुट्ठी ना खोले तो कोई बशर सांस नहीं ले सकता। ए जेड़े तुहाडे घरां दे अंदर फर्नीचर बरकतां पईयां ने ये खुदा ना करे तुसीं लै सकदे हो? जिन्नी मर्जी मेहनत कर लो नामुमकिन है। यीशु का बड़ा फजल है आप पर। उसने आपको हर तरह की नेमत से, आपको खूबसूरत औलाद दी हुई है, आपको खूबसूरत बच्चे दिए हुए हैं, खूबसूरत घर दिए हुए हैं, शुक्रगुजारी नहीं है। ए मसीह दी सब तो बड़ी कमजोरी है, शुक्रगुजारी है ही कोई नहीं। आपको पता है बाइबल में लिखा है ए भाइयों शुक्रगुजारी करना तुम पर फर्ज है। खुदा ने पूरी बाइबल पढ़ी, दो चीजें जिन पे मैं बड़ा ईमान रखता हूं, एक शुक्रगुजारी है जो इंसान पर फर्ज कर दी गई है, और दूसरा खुदावंद यीशु ने जब अपने शागिर्दों के पांव धोए तो कहा ए भाइयों तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। इतने वड्डे नूं फिर देने धोना दूर दी गल है, वड्डे नूं फिर देने सके भरा भरा नहीं तरक्की करदे वेख सकते, बाइबल से दूर है ना। और फिर लिखा है शुक्रगुजारी जो है ये हमें खुदा के करीब लेकर जाती है। सदके जावा किड्डा मोतबर बंदा है आज भाई अनवर, भाई ताहिर, जिनकी वसासत से हम यहां पर मौजूद हैं। हम खुदा के करीब सारे ही पहुंच गए हैं, लेकिन आज खुदा चाहता है हर एक अनवर की तरह मेरे को आए। बाइबल में लिखा है तू मेरे हजूर खाली हाथ ना आना, तू मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आना। वो वक्री गल है, सानू अपने मतलब दी सारी आदतें याद नहीं है। मसीही जो है मतलब कि सब आयतें जो इनके फायदे के लिए डटियां नहीं जिन्हें खुदा की जात दी ने भाई साहब वाली नवी गल सुना दी थी। बाइबल पढ़ो, सारी पुरानियां नहीं, आज से 2000 साल पहले की लिखी हुई आयतें, आज से 6000 साल पहले की लिखी हुई बाइबल आपके घरों के अंदर जिन्हें बड़ी उच्ची करके रखने ए इज्जत करते हैं बाइबल की, इन जरा उत्ते करके रखियो, इंज बरकत नहीं मिली। इन्हें पढ़ो बरकत मिलेगी, समझ आएगी। कहता है मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसके कुदूस नाम को क्या कहे मुबारक है। और फिर आगे लिखा है ऐ मेरी जान खुदा की किसी नेमत को फरामोश ना कर। नेमत हम किसे बोलते हैं? एक पंजाबी चैनल ने तंदुरुस्ती 1000 नेमत तो हल है, सारे ही भुल गए। एवं किसी के घर के बीमार का पता लैन हाँ नहीं खुदा का शुक्र है तंदुरुस्ती तो बाद कोई चीज़ चंगी नहीं भैना मैं तो तेन पहलू समझाउंदी हाँ, उत्थे सारी डाई लगाते हैं, बाद आके भोले बन जाते हैं, हमें पता ही कोई नहीं। अनएजुकेटेड लोगों की तरह हम इबादत कर रहे होते हैं। सॉरी टू से जनरल तौर पे बात कर रहा हूं। हालेलुया। कहता है मेरी जान खुदा की किसी नेमत को फरामोश कितने हैं जिन्होंने इस पूरे साल में सॉरी टू से रोटी नहीं खाधी। हमारे पास इतना वक्त नहीं है रोटी खान तो पहले शुक्रगुजारी करें। याद रखें जब शागिर्दों को यीशु रोटी तोड़ के देने लगा, लिखा उसने रोटी की और शुक्र करके तोड़ी। असी पहले कहने नहीं नहीं तीन नहीं 5 खानी आप 3 खाना वा, शुक्रगुजारी कोई नहीं, लड़ाई बरकत कहां से मिलेगी? कहां हम खुश हो? कैसे हम हाटे चेहरे 24 घंटे 12 बजे रहते हैं शुक्रगुजारी करें? ये बातनी तौर पर इंसान को खुशी देती है। और देखो नूर चमकन डया बंदे ने चेहरे पे देखें, बहुत बड़ी मर्ज है, हार्ट अटैक बहुत बड़ी मर्ज है। सदके जाइए उस खुदा के जिसने आसमान से अपनी मुट्ठी कसरत से खोल दी और आगे वादा जानवर तेन कभी अटैक होए गए। खुदावंद यीशु मसीह की खुदा अनलिमिटेड कंटिन्यू कायम रहने वाली शिफात ने आरज़ी नहीं देता, याद रखियो। हालेलुया। और लगता पे बंदे ने 40-50 हज़ार खर्चा किया शुक्रगुजारी ते साडा ना करके भी वही हाल है। ऐ मेरी जान खुदा की किसी नेमत को फरामोश, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हर उम्र के लोग बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जवान बैठे हुए हैं। अज तक किसी बुजुर्ग ने सारे घर के दरवाजे भन्ने हो आओ जरा इबादत ते मैं शुक्रगुजारी करा रहा आए तो पूछा जाए बुजुर्गों कादी, आखे मैं उस खुदा का शुक्र करना अज मेरी उम्र 70 साल है, मैं अखा तो फिर भी सही रहना वा।
है कोई शुक्रगुजारी? ये नेमत नहीं है, आंख नेमत नहीं है। कोई इस तरह की कलीसिया में शुक्रगुजारी सुनी हो, दो भी मियाँ बीवी घर जाके दावत दी हुए पूरा साल लंघ गया, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਰੱਖੀਏ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 5 ਸਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੀ 5 ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई बीमार नहीं हुआ, सारे तंदुरुस्त है। हमने खुदा के हुजूर शुक्र, ये नेमत नहीं है। असी शुक्रगुजारी कदों करने कमेटी निकले, हम शुक्रगुजारी कब करते हैं? घर बन जाए। कब शुक्रगुजारी करते हैं? बेटे का ब्याह हो जाए। कब शुक्रगुजारी? ब्याहों पे भी इस तरह की शुक्रगुजारी होती है। जगह पे मुझे बुलाया गया, वहां पे भी मैसेज सुना के नीचे उतर आई, मुंडे ने गाना लाता जरा ना नचे उल्लू का पट्ठा। मैं हेलो बंद कर यार, अं पादरियां इतने तुही बाद चला के उल्लू के पट्ठे बन जाओ, जिन्ना मर्जी नचे हो। हम कब शुक्रगुजारी करते? हम मौका देखते हैं। तो ये जो पांव से सर तक है, आपको पता है आपकी आंख के अंदर कई लाख सेल हैं, अगर उनमें से एक सेल कम हो जाए तो नजर वीक होना शुरू हो जाती है। पता है आपको? कभी इस तरह की शुक्रगुजारी स्टेज पे देखी हो? नहीं। हमें बुलाया ही तब जाता है, हमें पता ही तब चलता है ब्याह है, मंगनी है, सोना रिश्ता लग गया, कमेटी निकल गई है, गड्डी ले ली है। हम अपने बदन की क्यों शुक्रगुजारी नहीं करते? क्या ये हम पर फर्ज नहीं है? हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की। आपको पता है सन 2022 के अंदर, अच्छा शुक्रगुजारी एक ना करने की ये भी वजह है, हमसे जो ऊपर लोग होते हैं हम उन्हें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सारे ने टोयोटा करोला ले ली है ना, हाँ उन्होंने देखना है। आप अपने नीचे जो लोग हैं उनको देखिए। आज भी हॉस्पिटल के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो खुद कह रहे हैं रब्बा मैनू मौत ही दे दे। आप एक दिन हॉस्पिटल में गए, यीशु ने फौरन आपको तंदुरुस्त करके बाहर निकाला, यही शुक्रगुजारी का मौका है। आप अपने नीचे देखें, ऐसे लोग हैं। मैं कुछ दिन पहले हम विजिट पे जा रहे थे, मैंने एक बच्चा देखा, उसके पाँव में जूता पहनने को नहीं था। हम गुजर रहे थे किसी जगह पर, वहां पर मैंने फौरन से खुदा का शुक्र किया। मैंने कहा खुदाबंद तूने हमें हर तरह की नेमत से नवाज रखा है। हम देखते ही अपने ऊपर नहीं ये नहीं लइए, शुक्र करना ही नहीं, ये मिलेगी तो करना है। खुदा कहता अच्छा देना मैं तेन ले मेरे को। ऐ इंसान खुदा की किसी नेमत को फरामोश ना कर। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिहड़े 40-45 साल की उम्र से जाके बिल्कुल बुजुर्ग हो जाते। क्यों? शुक्रगुजारी जिंदगियों में है ही नहीं है। आपको पता है शुक्रगुजारी हमें खुदा के करीब लेकर जाती है, शुक्रगुजारी आसमान के दरवाजे खोलती है, शुक्रगुजारी हमारी रूह को तसल्ली देती है, हमारी रूह को खुशी देती है। आज हर बंदा ही परेशान है, रीजन शुक्रगुजारी। आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है। एक दिन पूरी दुनिया में स्पेशली थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है। जनाब आज शुक्रगुजारी का दिन है, मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? यही रीजन है कि खुदा उन मुल्कों पर और अपनी नजर करे, उनको और तरक्की दे, उनको और इज्जत दे, इसलिए मनाया जाता है। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की। फिर आगे लिखा है खुदा इंसान खुदा की किसी नेमत को क्या कर? फरामोश ना कर। और आगे लिखा है वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। यहां पर कितने हैं जिन्होंने कभी गुनाह ना किया है? नहीं, तौबा, मैं गाल कभी कड्डी नहीं, मैंने दिल में कभी किसी के लिए बुरा सोचा ही नहीं। कितने हैं यहाँ पर? यह फायदा भी जेडे तुम गुनाह करते हो ना जाने अनजाने च, शुक्रगुजारी और बदकारियां भी मुआफ कर दी हुई है। हालेलुया। मुझे लगता है तुम नहीं बख्शोना चाहते। खुदावंद यीशु मसीह की। ये है शुक्रगुजारी का फायदा। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा नजर करता है। बाइबल में मशहूर ज़माना आयत है कि खुदा के परस्तार जब उसकी परस्तश करते हैं तो खुदा खुश होता है। क्या करता है? खुदा खुश होता है। हमें मौका ही नहीं मिलता परस्तश करवाने का, हमें मिलता ही नहीं मौका। हाडे रोने रंडे ही नहीं मौके क्रिश्चनों की कख है ही नहीं, बचे ही कख नहीं। हम तो इस तरह के क्रिश्चन है, हम साया घर आ जाते हैं पतीले कज के बल्कि मंजियां थले वाड़ देने। हालेलुया।
लिखा है वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। मुझे याद आया अमेरिका की बात है, एक शख्स 3 दिन कोरोना के दिनों में उसको आर्टिफिशियल सांस दिया गया, आर्टिफिशियल ही है। जब वो ठीक होके बाहर आया तो उसको उसका बिल दिया गया, मेरे ख्याल में गालिबन $6000 था। उसने जब बिल देखा तो रोना शुरू हो गया, रोए जा रहा। डॉक्टर अब जो होया कि ये कहता मैनू ये टेंशन नहीं कि बिल ज्यादा है, ये $1,00,000 भी होंदा मैं देना, टेंशन ये वे तुसीं मैनू 3 दिन साह दिता है ते ओहदा $6000, जिन्हें जेड़े खुदा ने मैनू शुरू तो लैके होन तक साह दिता है मैं उन्होंने कभी कुछ दिता ही नहीं। यहाँ पर खुदा कहता है वो तेरी सारी बीमारियों से तुझे क्या करता है, जेड़ी लाइलाज बीमारी है उसकी भी शिफा वो देता है। शुक्रगुजारी करना इसलिए हम पर फर्ज है। मेरा लास्ट दिन में एक्सीडेंट हुआ, मैंने फौरन से चर्च में शुक्रगुजारी का अरेंज किया, तो एक बंदा मेरे पास पैसा एक्सीडेंट की शुक्रगुजारी करी, मैं नहीं एक्सीडेंट तो बचन की शुक्रगुजारी कराई। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ हॉस्पिटल गए तो वहां पर एक और एक्सीडेंट का मरीज आया, सारी टांग उसकी फ्रैक्चर हो गई थी, तो शायद डॉक्टर उसके साथ उसके वालिदैन के साथ बात कर रहे थे, ये वडनी पैनी है, ये काटनी पड़ेगी। मैंने कहा खुदावंद एक्सीडेंट तो मेरा भी बहुत बुरा हुआ, लेकिन तूने मुझे बचाया क्योंकि तू अपने तालिब की हिफाजत करता है। मैंने फौरन से चर्च में ऑर्गेनाइज की इबादत, फौरन ऑर्गेनाइज की, मुझसे चला नहीं जा रहा था, फिर भी मैंने कहा चर्च जाए, अरेंज करें इबादत का, सारी टीम को बुलाया, आए हम खुदा की शुक्रगुजारी करें क्योंकि उसने हमारी सारी बदकारी को बख्शा और सारी बीमारियों से, तमाम बीमारियों से, जितने डॉक्टर ने सॉरी ए इलाज नहीं है, वहां पर यीशु कहता है मैं तुझे तेरी सारी बीमारियों से शिफा दूंगा। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, हालेलुया। वो तुझे तेरी सारी बीमारियों से क्या करेगा, शिफा देगा। देगा कब? जब हम सारी नियमतें फरामोश किए जाएंगे। एक तो रौला है वे चीज नवी मिल जाए, हाँ ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, घर बेटा हो जाए ना उन्होंने बाहर नहीं कढ़ना, नजर लग जाएगी। खुदा ने बाहर कढ़ने वास्ते पैदा किया है, लोगों को दसो तुहानू बरकत मिली है, इंजॉय करें बरकतों के साथ, ना लकाओ, जिन्हें दिता है वो नहीं मरन देंदा। हम अपनी बरकतों को छुपा, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, नया सामान लाते हैं तो उन्होंने लपेट के सेव कर दें, पुराना इस्तेमाल करिए उन्होंने। वो खुदा ने दिया, उसको एंजॉय करें, उसके साथ खुश होके उसको इस्तेमाल करें, खुदा और भी देगा। बेईमानी की इंतहा है। फिर आगे लिखा है वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है। मैंने शुरू में ये कहा, पता नहीं साल में हम कितनी मर्तबा मौत के करीब गए, कितनी मर्तबा, लेकिन खुदा ने हमें हलाकत से बचाया है। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की। आज की शुक्रगुजारी का कुछ यही मकसद है कि वो तेरी जान को किससे बचाता है, हलाकत से। मौका देता है, किसी तरीके मेरे को आ जा, किसी तरीके मेरे पास आ। बाइबल में लिखा है वो ऊंचे बुर्ज पर खड़ा होकर देखता और कहता है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, वापिस लौट आ क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। हम हर वो काम पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जिस पर हमें कोई मुस्तकबिल में फायदा ही नहीं है। अब शुक्रगुजारी का जो सबसे बड़ा मैं आपको फायदा बताने लगा हूं, जरा इस पर गौर कीजिए। आप शुक्रगुजारी दुनिया में रहकर कर रहे हैं, इसका आपको फायदा बताने लगा हूं। आसमान पे क्या फायदा होगा, क्योंकि हम सब मुसाफिर हैं। किन्ने ने जरा आसमान ते सुना हमेशा की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, सारे ही गुजारना चाहते हैं। फिर शुक्रगुजारी करो, मैं भी बताने लगा हूं, यीशु ने हमारे लिए एक नया रास्ता बनाया है। यीशु मसीह ने कहा जो कोई शुक्रगुजारी करेगा, यीशु ने शुक्रगुजारी करना सिखाई है ना हमें, जो कोई शुक्रगुजारी करेगा। यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता।
ਇੱਥੇ ਮਰਲੇ ਮਰਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡੇ, मरले मरले भी मरण डे है ना। मैंने तो देखा है 1 फुट दी सिर्फ वट दी वजह तो यहाँ पर 2 कत्ल हुए हैं हमारे पास गांव में, 1 फुट की जगह तो यीशु मसीह ने कहा तुम घबराओ नहीं, मैं जाता हूं, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। अब शुक्रगुजारी हमारा रिश्ता जो है वो खुदा के साथ जोड़ती है, हमारा राबिता खुदा के साथ जोड़ती है। और जब हमारा राबिता खुदा के, वैसे शुक्रगुजारी तो वही कर देना जितना राबता खुदा नाल हुए, इसका मतलब जो नहीं करते उनका राबता नहीं है, बहाल करे राबता। क्योंकि ये जिंदगी 70 बरस अगर कुव्वत हो तो 80 बरस जो जिंदगी खुदा हमें देना चाहता है वो हमेशा की है, हमेशा किसी ने देखा ही नहीं। अगर हमेशा देखना है तो यीशु को देखें। मैं कल चर्च में मैसेज सुना रहा था और मैंने कहा यीशु वाहिद वो बादशाह है जिसने ना सिर्फ इंसानों पर बादशाही की, लिखा है उसकी बादशाही आसमान पर और जमीन के नीचे भी उसकी बादशाही है। पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठाकर देख लें, तमाम अंबिया असगर अकबर की हिस्ट्री पढ़कर देखें, तमाम बादशाहों की हिस्ट्री पढ़कर देखें, सब बादशाह महदूद हैं। मेरा और आपका यीशु लामहदूद है, जिसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है और मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूं। जो कोई मेरे पास आएगा आबे हयात मुफ्त देगा, क्योंकि मैं मर गया था अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद तक जिंदा रहूंगा। मौत और आलमे रवा का कुल इख्तियार मेरे पास है। मैं तुम्हें कहता हूं जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो मर तो जाएगा लेकिन मरा नहीं रहेगा, वो जिंदा होकर मेरे बाप के और मेरे साथ रहकर हमेशा की जिंदगी गुजारेगा। ऐ इनाम देना चाहता है यीशु साहब, ये बरकत है यीशु की, लेकिन मजबूरी है, यीशु के लिए खर्च करना मुश्किल है। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार ओदे कोल आओ कहता वो मैं तुम्हें देता। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूँ। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की। वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है और तेरी जान को हलाकत से, जिन्ने भी नबी आए सारे क्या तोबा कर लो, मर जाओगे मर जाओगे मर जाओगे। लोका कई तोबा की भी फिर भी मर गए। यीशु ने कहा जो कोई मेरे नाम पर ईमान लाकर तोबा करेगा वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की। जोरदार तालियां खुदावंद यीशु की, तमाम ब्लेसिंग की जोरदार तालियां, जितनी भी जोर से बजा सकते हैं बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। क्या वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। हालेलुया। किन्ने ने जेड़ा सोने का ताज पाना चाहते हैं? किसी ने पढ़ा हो बाइबल में से आसमान पर सोने का रेट क्या है? इतने 22-24 चराट है सोना। किसी ने पढ़ा हो? नहीं ना आसमान पर हमें याद भी आता है, खाली आता है खाली जाना है, तो फिर करन की डे हैं असी एवं 24 घंटे मेहनत करन डे। दुआ के लिए वक्त ही नहीं। बाइबल की एक मशहूर आयत है, मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है जिसने ज्यादा जमा किया उसका कुछ ज्यादा ना निकला। आप यीशु को वक्त दें। और फिर बाइबल में लिखा है जिसने कम जमा किया उसका कुछ ज्यादा ना निकला। आप यीशु को टाइम दें। मसीही जिंदगी दुआ रोजे की जिंदगी है। मसीही जिंदगी, जो मसीहियों का ईमान है वो मुर्दा नहीं है, हमारा ईमान जिंदा ईमान है और वो खुदा का बेटा यीशु है, जिसने कहा मैं अब्दुल आबाद तक जिंदा रहूंगा। हालेलुया। लिखा है वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का क्या करता है? ताज रखता है। बाइबल में पौलुस रसूल कहता है ऐ खुदावंद अगर तू इंसान पर नजर करे तो फिर कौन है जो तेरे हुजूर ठहर सके? कौन है? बात नहीं 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 नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं दुआ करा। ये क्या है? पौलुस कहता है खुदावंद अगर तू इंसान पर नजर करे तो कौन है
جو تیرے حضور ٹھہر سکے. ہے کسی کی جرت؟ اور خدا کہتا ہے میں رحمت اور شفقت تجھ پر کروں گا تاکہ جب تو میرے پاس آئے میں تجھے برکت دوں. میں شکر گزار ہوں بھائی طاہر کے لیے، بھائی ایلڈر یعقوب کے لیے، انور کے لیے، جنہوں نے شکر گزاری دی. بائبل میں لکھا ہے، یاد رکھیں بائبل میں لکھا ہے. میں یہ اکثر کہتا ہوتا ہوں جب ہم خدا کے حضور آ کر اپنی آنکھ کو ایک مرتبہ بند کر کے کھولتے ہیں، خداوند یسوع اس کی بھی برکت ہمیں دیتا ہے. خدا ان کو برکت دے جب انہوں نے فون کیا تھا پادری صاحب 26 تاریخ کی عبادت دی ہے. خدا نے ہوتا نہیں آسمان کھولیا، نہ صرف جسمانی برکتاں لی، خدا نے ایٹرنل لائف زندگی کے لیے بھی آسمان کھول دیا. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کی اے جدوں کولیاں تو دیکھ تھلے لا لگے سنا، خدا نے وہ تو کہتا ہائے میں صدقے جاواں انور، مینوں فخر ہے کہ میں تینوں اس دنیا دے بھیجا. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے خدا نے انسان کو صرف لفظ اسی طرح آیا ہے اپنی حمد اور ستائش کے لیے بنایا ہے. ہم ایک دوسرے عہدے کو بڑا پیسہ ہے عہدے کو انساناں دی پرستش کرتے رہنے ہیں، ہاتھ کھ نہیں آتا. ٹھیک ہے، وہ تیری جان کو راکس، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے اسودہ کرتا ہے. آپ میں سے کتنے ہیں جو غصے چاول کھانا پسند کرتے ہیں؟ چوک کے ہانڈی سمیت باہر سٹنا لے جے کو بائی مسٹیک دیا بھی جائے انہوں عقل ہی نہیں، وہ دی لا پھاگ، وہ تجھے عمر بھر تازہ فریش سبزیاں دیتا ہے. کنے جڑے گسیاں سبزیاں پکون دیں، یہ خدا کی تو نعمتیں ہم انجوائے کر رہے ہیں. اہی تے گوشت کھا کے موٹے ہوندے جان رہے ہیں. شکر گزاری نہیں کرتے. یہاں پر لکھا ہے وہ تجھے عمر بھر. کسی ڈاکٹر نے کہا بابا ان بڑھا ہو گیا ہے، انہوں گسیاں سبزیاں دو، گسے چاول دو، گسی روٹی دو. کہا کسی نے عمر منع نہیں کر دیتے نہیں میں کھانا ہے، کیونکہ وہ مجھے عمر بھر اچھی چیزوں سے اسودہ کرتا ہے. پر دے رجاؤں ہے رج کے کھا. اور آپ میں سے اور بھی کتنے لوگ ہیں جڑے ادھی روٹی کھا کے نہیں میں رج گیا ہاں. اتنی 5-7 پنجابیاں ہی 10 روٹیاں نہ کھا لیا ڈا پیٹ نہیں پڑتا. وہ تجھے اچھی چیزوں سے اسودہ کرتا ہے. تو عقاب کی مانند اثر نوجوان ہوگا. ہیلیلویا. یہ سارے وعدے بائبل کے ہیں اور بائبل میں لکھا ہے جو خدا کی شکر گزاری کرتا ہے. زبور 127 کے اندر لکھا ہے تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی. تو گھر سے نکلتے بھی مبارک ہوگا اور گھر کے اندر داخل ہوتے مبارک ہوگا. میں تجھے دم نہیں ٹھہراؤں گا، سر ٹھہراؤں گا. میں تجھے قرض لینے والا نہیں دینے والا ٹھہراؤں گا. تیرے دشمن ایک راستہ سے آئیں گے، اگر تیرا رابطہ میرے ساتھ ہے تو ہاتھ نہیں ہلائے گا. تیرے دشمن شکستہ ہوں گے اور میں تجھے سرفرازی دوں گا، کیونکہ میں تیرے دشمنوں کے روبرو وہ چاہ رہے ہوں گے یہ کھانا نہ کھائے. میں آسمان سے خود اپنے ہاتھوں سے تجھے کھانا کھلاؤں گا تاکہ تو ہمیشہ کی زندگی پائے. کیونکہ یسوع نے کہا زندگی کی روٹی. ہاللیلویا. خداوند یسوع اسی کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے.